Hello everyone, welcome to this new video. In this video, we are going to talk about the strategy for subject knowledge. Okay, so there is a portion called as subject knowledge in your DU entrance exam. So we are going to talk about it, that what are the topics and which NCRTs you are supposed to cover, and in those NCRTs which chapters are to be read and what are the chapters which you can skip. Okay, so this video is oriented for geography and history particularly. So we'll talk about these two NCRTs, and rest of the NCRTs like science and other we will cover in the different video. Okay, so I'll discuss something about economics also. So let's start, and all your questions that why NCRTs are important, are all NCRTs important, which chapters are to be skipped, okay, will be answered. And should you join the test series or not, I'll answer that also. So why NCRTs are to be read, that is an important question. So look at the question below. When you will read the question, imagine you were a non-Jewish German woman in first half of 20th century. Which of the following statement you could have been in reality in your life? Okay, you have been a reality it could have been a reality in your life. So यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो तीन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है. सो अब इन तीनों में से या तो कोई एक करेक्ट होगा, या दो करेक्ट होंगे, या तीनों करेक्ट होंगे, हो सकता है कि कोई भी ना करेक्ट हो, ठीक है. उसके बाद आपको नीचे चार ऑप्शंस और दिए हुए हैं जो जिनमें से आपको एग्जैक्टली आंसर मार्क करना है, ठीक है. तो अब आप देख रहे हो कि अगर आपको एक या दो स्टेटमेंट्स में भी कंफ्यूजन हुई मान लीजिए, तो आपका आंसर रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है. और ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर उठाई होती हैं, ठीक है. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी एंड इफ़ यू विल बी नोइंग द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, then you will be able to answer it. Okay, for IP University this is not needed, this is specially needed for DU entrance exam. Okay, so moving ahead, which NCRTs are required? So all NCRTs from class 10 to 6th to 10th are relevant except economics NCRT. Okay, rest all are relevant. So economics की जो NCRT है 9th और 10th की, that is not relevant. Rest all other NCRTs are relevant. Okay, so there are certain chapters which you may skip, so we will talk about those chapters. So let's see. So in this video we are talking about geography and history only. Okay, so in geography, let us talk about class 6th first. So in class 6th you should cover chapter 1 to 8, and then uh, chapter 4 you can leave. Okay, so what is chapter 4? Let us see. Chapter 4 is about maths. Okay, here you can see this is class 6th uh, contents. Okay, so maps wala chapter you can skip, and rest all the chapters like 1 2 3 4 and 5 6 7. So total 7 chapters would be there if you will skip this fourth one, the maps wala chapter. Okay, so apart from it, in class 7th you are supposed to study all chapters except chapter 8 9 and 10. So let us see what are these chapters about. So these are about human environment, human environment interactions, sorry, and the tropical and subtropical region, and the life in deserts. Okay, so why am I saying that you can leave this chapter? Because most of the questions will be in applied form. For example, if some question has been asked related to desert life, so you all are grown up enough to identify the factors which will be prevailing in the desert life. Okay, so why to read these chapters unnecessarily? Rest all the chapters are very important because they must be having some फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट वाला पढ़ोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, और इन्वायरमेंट नीश किसको बोलते हैं, एटसेट्रा, ठीक है. ये सब चीज़ें होंगी. इनसाइड आर अर्थ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अ, इसमें अर्थ क्रस्ट के बारे में होगा, लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर ये सब चीज़ें, ठीक है. उसके बाद आर चेंजिंग अर्थ ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एयर वाटर, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन अगेन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. बाकी ह्यूमन एनवायरनमेंट वाला तो इसलिए स्किप किया है क्योंकि देखो ह्यूमन हम लोग हैं और हम इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, सो वी मस्ट बी नोइंग
के क्या क्या फिनोमिनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस पे बेस्ड इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये 3 चैप्टर्स यू कैन लीव, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट क्लास 8 में आपको जो जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है ना, फॉर एग्जांपल ये क्लास 8 का है, ठीक है, कंटेंट है ये। तो इसमें जो जो ओवरलैपिंग टॉपिक है ना, जैसे देखो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर वेजिटेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लेट अस सी और कहीं वेजिटेशन लिखा हुआ है क्या। देखो वेजिटेशन क्लास 7 के कंटेंट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें ऐसे ही एक बार कंटेंट्स मिला करके देख लेना आप, जो जो चीज़ें ओवरलैपिंग है यू कैन लीव दोज थिंग्स, ओके। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि एनसीईआरटी पढ़नी है बट यू शुड रीड इट इन अ होलिस्टिक मैनर, ओके। सो apart from it class 9th geography very very important, whole book is needed, बहुत पतली सी बुक है and I think you can read that whole book, okay, it is very informative, it has important chapters on climate etc, okay। तो हमने देख लिया कि कौन सी जो ओवरलैप चीजें हो रही थी, क्लाइमेट वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा ओवरलैप होगा, ठीक है। तो क्लाइमेट भी बस एक ही बार पढ़ लेना एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस क्लास 9th, ओके। सो मूविंग अहेड टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में all NCERTs are important from class 6 to 10th, okay, for your basic reading, सिर्फ एक बेसिक रीडिंग के लिए, इसमें से कुछ समझना नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेसिक एक आइडिया ले लेना है इसका। अपार्ट फ्रॉम इट यू आर सपोज टू कवर मेन कंटेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉक्स, ओके। जो जो इसमें बॉक्स में मेंशन है ना, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए क्योंकि उन क्वेश्चंस जो है वो इसी में से आते हैं। So class 9th and 10th, not all chapters are to be done, only specific chapters are to be done. I'll tell you about those chapters in like on the next slide, okay, just wait। Then history लूसेंट से भी थोड़ा बहुत करना है, ठीक है, it will have certain important information। हिस्ट्री वाला पोर्शन लूसेंट में खोलना and you should read it, it is very informative and it has a lot of facts, okay। So even if you are like just reading NCERT and not memorizing anything, uh, then history will be okay, okay, you are not supposed to mug up NCERT for this। Then what are the sources for ancient medieval and modern, this is very important, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस के एग्जांपल्स याद कर लेना, वो इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड तो कमेंट कर देना, आई लेट यू नो अबाउट द सोर्सेस, ओके। देन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम इज अ बुक, अगर आप इंटरनेट पे जाके लिखोगे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री पीडीएफ, तो बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नेशनलिज्म से रिलेटेड, स्पेशली गांधीयन मूवमेंट्स और वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले चैप्टर उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस उतना कर लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये बाकी कंटेंट्स हैं इसके, जो जो चैप्टर्स वैसे तो ओवरलैप करेंगे नहीं बिकॉज हिस्ट्री की जो बुक है 6th क्लास की उसमें एंशंट इंडिया के बारे में है, और ये 7th की बुक है इसमें मिडिवल इंडिया के बारे में, 8th का मॉडर्न इंडिया के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना गाइज, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है असल में, ठीक है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे होता था, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी एनसीईआरटी की समरी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर ही, जो कि मैंने बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। उसमें शायद क्लास 6 की है, 7th की है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बट 6th क्लास की है, वो आप देख सकते हो। अ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये है क्लास 9th का गाइस, दिस वन इज फॉर क्लास 9th, क्लास 9th के कंटेंट्स हैं ये। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, रशियन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, नाजिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड और पेजेंट एंड फार्मर्स में से ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज मेंशन की होंगी, ठीक है, जैसे गुज्जर बकरवाल्स ढांगर्स, ठीक है, इन सब के नाम्स होंगे की इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी होंगी चैप्टर में। पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं बता रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट पेस्टोरलिस्ट के नाम, ठीक है, कम्युनिटीज कहाँ रहती हैं, शिवालिक रेंज में कौन सी कम्युनिटीज रहती हैं, महाराष्ट्र में कौन सी हैं, गुजरात में कौन सी है, मध्य प्रदेश में कौन सी है, बस उतना उतना कर लेना, ठीक है। और वो क्या क्या ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन तो पेस्टोरलिज्म ही होगा, बट व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू दे कीप एंड अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट आर देयर अलाइड एक्टिविटीज दैट यू शुड डू, ओके। सो इन दोनों में से एक चैप्टर में दिया हुआ है वो, चैप्टर 56 में, दैट यू विल हैव टू फाइंड, ओके, ढूंढ लेना एक बार। देन चैप्टर 8 एंड 7 आर टू बी लेफ्ट, दे आर नॉट टू बी डन, ओके। और ये कंटेंट है क्लास 10th के
So rise of nationalism in Europe, that is not important because you have already done French Revolution and Russian Revolution. तो मेन क्वेश्चन इसी से ही बनेंगे, ठीक है, तो ये पहला चैप्टर मत करना, चलेगा। उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हो ची मिन ट्रेल वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ लेना बस। देन नेशनलिज्म इन इंडिया, होल चैप्टर इज टू बी रेड, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड नहीं पढ़ना। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ सकते हो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये है ना, नॉवेल्स एंड नॉवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चैप्टर पढ़ लेना। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8, वर्क लाइफ एंड लेजर से भी बाय द वे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3, 6 एंड 8, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रिंट कल्चर में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बुक का नाम मिलता है ना, वैसे बुक का नाम ना ये नॉवेल्स वाली में होगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो चैप्टर 8 है उसे मत छोड़ना, तो ये ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, फॉर इकोनॉमिक्स आई विल पोस्ट अ पीडीएफ इन अ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो टर्म्स ही याद करनी है क्योंकि उन्हीं पर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी या 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। उसके बाद आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड फॉर एनसीईआरटी summary you can check the description below.